Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all have seen that we have completed all the lessons in our A2 syllabus of English grammar, and we are doing the extra work now. Okay. So, first of all, we are doing worksheet 10. So, what we will do in today's worksheet, we will do picture description and we will do prefix. So, before that, what you all have to do? You all have to mention today's date in your copies, that is 30 July 2020. You all have to mention online classwork in your copies, and you all have to mention picture description before starting. Okay. So, as you all know that these are the extra work of our English grammar syllabus. So before starting the picture description, let me show you the picture, that about which picture we are describing. Okay, so let's see. So the picture you can see that it is showing the scene of a park, and the both pictures are showing about the exercises. Yoga is also a kind of exercise, and both are showing about the physical health of a human. मनुष्य की जो शारीरिक स्वस्थ होता है मनुष्य का, उसके बारे में दिखा रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ विल वी डिस्क्राइब दिस पिक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू ऑल हैव टू डू, you all have to draw and color this picture very neatly and nicely in your copies, and you all have to send the photo also for checking. So let's see the description now. The heading that you will write in your copy, that is picture description. So like I told already, draw and color the given picture in your copy. First you all have to draw and color this given picture, and then we will do the description of this one picture. So as you all have seen in the picture, the given picture shows the scene of a park. इट सीम्स द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग. सो जो पिक्चर है जो हमने देखी है उसमें कहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें एक पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा है. सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहाँ कौन सा समय है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय है. मीन्स जो जल्दी का समय होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू एक्सरसाइज एट अर्ली मॉर्निंग ओनली. ओके, सो लेट्स सी फॉरवर्ड. द पार्क in the picture is full of greenery. So as you all have seen in the picture that there is a lot of greenery in the park. Trees we have seen. Greenery means होती है हरियाली. Okay. Next is the weather in the scene is looking pleasant. जो मौसम दिखाई दे रहा है इस सीन में वो बहुत ज़्यादा सुहावना दिखाई दे रहा है. Pleasant means होता है सुहावना. Because when we wake up early morning, so we see most of the time that the weather is very pleasant of early morning. So the same situation is being shown in that one picture also. Let's see forward. The park scene is showing two different pictures related to physical health. तो जैसा कि आपने देखा कि जो पार्क सीन है वो एक दो अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स दिखा रहा है. दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, मीन्स शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में. बिकॉज योगा इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर फिजिकल हेल्थ, एंड exercise is also related to your physical health, not only physical, mental health also. Let's see forward. At one side of the park a couple is doing yoga. जैसा कि हमने देखा कि एक जो साइड है पार्क का वहाँ पर एक कपल means a lady and a man is doing yoga. वो दोनों योगा कर रहे हैं. And at the other side a lady and some children are doing exercise. और जो दूसरा साइड है वहाँ पर एक लेडी है और उसके साथ कुछ बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं. द लेडी एंड द गर्ल इज स्किपिंग. एक्सरसाइजेज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. एक्सरसाइज आपकी कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपके योगा के आसन्स होते हैं कई प्रकार के. सो लाइक दैट जो लेडी है और उसके साथ एक गर्ल, वो दोनों स्किपिंग कर रहे हैं. स्किपिंग मीन्स होता है रस्सी कूदना. नेक्स्ट अ स्मॉल गर्ल इज़ रनिंग. एक जो छोटी सी लड़की है वो क्या कर रही है, वो दौड़ रही है. बिकॉज रनिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ गुड एक्सरसाइज. Let's see forward. Next it is written a boy is doing squats while a girl is doing planks. So squats and planks, they are a type of exercise. Okay. So एक लड़का जो है वो स्क्वाट्स कर रहा है और जबकि दूसरी लड़की जो है वो प्लैंक्स कर रही है. These all are different types of exercises. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लैंक्स, स्क्वाट्स, स्किपिंग, योगा, these all are different type of exercises. ये अलग अलग प्रकार के व्यायाम हैं जो किए जाते हैं. Next is the couple is looking happy and relaxed while doing yoga, and yoga does not only relax our body but also relax our mind. So जो कपल आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है, रिलैक्स दिखाई दे रहा है जब वो योगा कर रहा है. बिकॉज योगा जो है वो सिर्फ आपकी बॉडी को ही रिलैक्स नहीं करता है, इट रिलैक्स योर माइंड ऑल्सो. सो लेट्स सी द पिक्चर. So they both, the couple is looking happy, you can see on the faces,
एंड दे आर लुकिंग रिलैक्स ऑल्सो, बिकॉज व्हेन वी डू योगा सो हमारा जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है जितना भी वो दूर होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है एंड हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, एज इट इज़ सेड दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन द हेल्दी बॉडी। जैसा कि कहा जाता है कि जो एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है वो केवल एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। सो इफ़ यू वांट योर mental health will be good, so your physical health should be good for that first of all. So let's see forward what is written in the description. Let's see forward. योगा एंड अदर एक्सरसाइजेज मेक अस फिट एंड हेल्दी। योगा के साथ और जो अलग अलग व्यायाम होते हैं वो हमें क्या करते हैं, फिट बनाते हैं, हेल्दी स्वास्थ्य बनाते हैं। दे इंक्रीज आर इम्यूनिटी सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, दैट इज़ रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपकी बॉडी में एक प्रकार की इम्यूनिटी पावर होती है जो आपकी डिजीजेस से लड़ती है। सो इफ़ द इम्यूनिटी पावर इज़ हाई इन योर बॉडी, सो योर बॉडी कैन फाइट विद द डिजीजेज वेरी ईजीली। सो एक्सरसाइज क्या करती हैं, सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करती हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको अच्छा बनाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी को लचीला बनाती हैं, आप कितना भी फ्लेक्सिबल हो सकते हो। एंड आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उनको स्ट्रेंथ देती है, मीन्स उसको मजबूत बनाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दे इम्प्रूव आर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स होता है सांस लेना। व्हेन यू डू एक्सरसाइज योर रेस्पिरेशन सिस्टम इज बीइंग गुड। जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो अच्छा हो रहा होता है, आपको एनर्जी मिलती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा, और आपका मेटाबॉलिज्म जो आपका बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है, मेटाबॉलिज्म, वो आपका करेक्ट होता है। इसके अलावा दे हेल्प अस टू रिड्यूस आर वेट ऑल्सो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द एक्सरसाइज एंड योगा डू, दैट इज़ दे हेल्प अस टू रिड्यूस द वेट। ये हमें मदद करते हैं हमारा जो बढ़ा हुआ वेट है उसको घटाने में, और अगर आप फिट हैं तो आपको फिट रखने में हेल्प करते हैं। सो योगासन्स help us to increase our blood circulation and reduce toxins in the body. योग आसन्स क्या होते हैं, योगा के अलग अलग आसन्स होते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, मीन्स खून का जो दौरान होता है, रक्त संचारण जो होता है उसको तेज़ी उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और हमारे बॉडी में जो जहरीले पदार्थ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड टॉक्सिन्स, तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। Okay, next is nowadays an epidemic COVID-19 has been spread all over the world, and to fight with this epidemic it is necessary to increase our immunity. So जैसा कि हमने देखा कि आजकल क्या है, एक महामारी फैली हुई है जिसको COVID-19 का नेम दिया गया है, ये पूरे विश्व में फैल चुकी है। सो अगर हमें इसके साथ फाइट करना है, सो वी हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट many persons that if we have to fight with this disease तो we have to increase our immunity system। उसके लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड डू एक्सरसाइज। नेक्स्ट इट इज़ रिटन योगा एंड एक्सरसाइज हेल्प अस टू इंक्रीज इट। सो जैसा मैंने आपको बताया कि योगा एंड एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेटर होता है। सो नेक्स्ट इट इज़ रिटन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंक्लूड योगा एंड एक्सरसाइज इन आर डेली रूटीन। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, योगा और व्यायाम को अपने डेली रूटीन में, मीन्स उसे थोड़ा समय देकर योगा और व्यायाम डेली करें। वी कैन लीड अ हैप्पी एंड सेफ लाइफ इफ़ वी फॉलो द सेम। हम एक बहुत ही बेहतरीन और सुरक्षित और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं अगर हम इस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करें। सो दैट वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पिक्चर विच आई हैव शोन यू। लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिंग। Our next topic is prefix. So as you all know that we have done last time suffix and this time we are doing prefix. So let's see the definition first of all. So prefixes are letters that are added before another words to form new words. Prefixes क्या होते हैं, वो शब्दांश होते हैं, they are not full words. पूरे शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दों के अंश होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जिससे आप किसी भी शब्द के पीछे जब जोड़ते हैं तो वो एक नए शब्द को फॉर्म करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। दैट इज़ लाइक ओबे होता है, ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना। इफ़ यू विल ऐड डिस टू ओबे सो इट विल बिकम डिसओबे। डिसओबे मीन्स होता है आज्ञा ना मानना। नेक्स्ट इज मैनेज। मैनेज मीन्स होता है आपका सारा काम जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। इफ़ यू विल ऐड मिस तो हो जाएगा मिस मैनेज, यानी आपका जो भी काम है वो अच्छे से मैनेज नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग दीज प्रीफिक्सेस। सो यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, वी हैव टू मेक न्यू वर्ड्स विद दैम। सो फर्स्ट इज इट इज़ रिटन डी। सो डी से हम बना सकते हैं डी कोड, कोड में हमने डी जोड़ा। एंड नेक्स्ट इज डिक्रीज। डी कोड मीन्स होता है कूट शब्दों को पढ़ना, मीन्स सिम्बल्स दिए होते हैं और सिम्बल्स के थ्रू आपको मीनिंग निकालना होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड डी कोड। नेक्स्ट इज डिक्रीज।
इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, अगर हम डिक्रीज करेंगे डिक्रीज मीन्स होता है घटाना। नेक्स्ट इज एक्स। एक्सहेल मीन्स होता है सांस छोड़ना, इनहेल मीन्स होता है सांस अंदर लेना। व्हेन यू एक्सहेल मीन्स जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब उसे एक्सहेल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स होता है धमाका, विस्फोट। नेक्स्ट इज नॉन। नॉन फिक्शन। फिक्शन इज अ टाइप ऑफ अ राइटिंग पीस जो एक काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। एंड व्हेन समथिंग इज नॉट इमेजिनरी, जो सिर्फ केवल काल्पनिक ना हो, सत्य भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नॉन फिक्शन। ओके, नेक्स्ट इज नॉनसेंस। जिस बात में कोई सेंस ही ना हो, व्यर्थ की बात हो, दैट इज कॉल्ड नॉनसेंस। नेक्स्ट इज मिस। मिस से हमें बनाना है दैट विल मिसलीड। मिसलीड मीन्स होता है भटकाना, गलत मार्ग पर ले जाना। मिसप्लेस। मिसप्लेस मीन्स होता है गलत जगह पर किसी चीज़ को रख देना। यूजुअली वी से कि ये चीज़ मुझसे मिसप्लेस हो गई, मीन्स आपने किसी गलत जगह रख दिया और आप भूल गए। नेक्स्ट इज री। री से बन रहा है आपका रिएक्ट, मीन्स प्रतिक्रिया करना। आपके सामने जब कोई एक्शन होता है, व्हेन यू रिएक्ट ऑन दैट थिंग। नेक्स्ट इज रीअपियर। रीअपियर मीन्स होता है कोई चीज़ जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं और आपको वो फिर से दिखाई दे। नेक्स्ट इज अनयूजुअल। अन से बना आपका अनयूजुअल, दैट इज असाधारण, मीन्स जो साधारण ना हो। नेक्स्ट इज अनइक्वल। अनइक्वल मीन्स जो समान ना हो, एक जैसा ना हो। नेक्स्ट इज IL। इल। इल से बना आपका इलीगल। इलीगल मीन्स होता है कानून के खिलाफ जाकर कुछ करना। नेक्स्ट होता है इलॉजिकल, मीन्स किसी बात में कोई तर्क ही ना हो, कोई लॉजिक ही ना हो, जो बेकार की बात हो, उसको इलॉजिकल थिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन। इन से बन रहा है आपका इनएक्शन। इनएक्शन मीन्स होता है कोई व्यक्ति जब काम ना कर रहा हो, कर्महीनता। नेक्स्ट इज इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स होता है गायब हो जाना। नेक्स्ट है DIS। डिस। डिस से बन रहा है डिसअग्री। डिसअग्री मीन्स होता है किसी के साथ सहमत ना होना। डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स भी आपका सेम होता है गायब हो जाना। ओके, द नेक्स्ट वन इज IM। इम। इम से बन रहा है इमेच्योरिटी, मीन्स होता है अपरिपक्वता, जिसमें मीन्स जो वयस्क ना हो, जिसमें समझदारी ना हो, उसको बोलते हैं इमेच्योरिटी। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मीन्स होता है अनुपयुक्त, जो चीज़ उपयुक्त ना हो। ऑन 11th नंबर इट इज़ रिटन इनक्लोज। इनक्लोज मीन्स होता है किसी चीज़ के साथ में रखना। लाइक समटाइम्स वी यूज टू से कि मैंने ये वाला पेपर इसके साथ इनक्लोज कर दिया, मीन्स किसी के साथ में रख दिया। नेक्स्ट इज एंटेंगल। एंड एंटेंगल मीन्स होता है उलझाना। ऑन 12th नंबर इट इज़ रिटन कोवर्कर। कोवर्कर मीन्स होता है साथ काम करने वाला। कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट मीन्स होता है साथ साथ मौजूद होना, एक जगह पर एक साथ मौजूद होना। ओके, सो दीज वर द प्रीफिक्सेस which you all have to write in your copies. We have done picture description and prefixes also. Again I am repeating that you all have to draw and color the picture also. If you will not draw, then your work will not be checked. So I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा. If still any confusion is there, so you can ask in the Zoom meeting or you can ask on the WhatsApp also. So till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.